हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Zoom, Mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon you. na Zoom. Have the light. First, welcome teachers and parents. Mobile लगा रहा है. Imdad sir, Mudassir Hussain sir, Abdul Qadir sir, Abdul Rahman bhai, Sarfaraz sir, Ishtiaquddin Akhtar sahab, Zaki sir, Afzal Afaq sahab, Zahid Yusuf bhai, Nur Alam Azad, Arif Siraj, Isha sahab, and so many youngers, so many guests who are present here. Being an English teacher, I would like to deliver my lecture in English. It doesn't matter whether you understand or not. मैं इंग्लिश में ही लेक्चर दूंगा, आप समझे या ना समझे. अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको सीखना चाहिए. If you do not understand, you should learn. सीखना चाहिए आपको, क्योंकि आगे if you want to become a doctor, if you want to become a successful lawyer, if you want to become a successful journalist, if you want to become an engineer, if you want to become a professor, you must know English. Okay, that's why it is better to deliver my lecture in English. And if you do not understand what I have told to you, it is your responsibility to just attend any classes, not come to me only. There are so many teachers in Dhaka. You can go to them, you can attend their classes and learn English. It's your responsibility. Because today's in modern time, without English, education, purpose of education and purpose of your career cannot be achieved. That's why it's my request to all your students, just try to learn English, try to attend any type of classes and utilize your time and achieve your aim, whatever you have determined, whatever you have decided to tell. I had written some points to speak and some of the topics like how to attend board exam. My other teachers, senior teachers, they have already told you how to attempt questions, how to attempt questions in the board examinations, and how to appear and how to deal all the problems, all the anxieties faced by the students in the examination hall. That's why I am coming to my next point. That is aim of your education and what is your aim, what you want to be, and the selection of course. Dear students, it is very wise to understand, it is very wise to know the strength you are good at, you are good in which subject. Suppose you are good at mathematics, you should opt for mathematics in your higher standard, in your higher education and other classes. For example, in 11th classes, if you are good at English, you should opt for English. If you are good at physics, you should opt for physics. And whatever subject you are good at, you should select your subject according to your strength and according to your interest. If you have interest in biology, and your parents and your teachers, they are pressurizing you to just take mathematics and become an engineer. I think it's not wise to take mathematics and become an engineer. If you are good at bio and if you have a strength in biology, you should choose biology and try to achieve your medical aspirations, and you should try day and night to become a doctor. That's why I have told you to just try to understand and try to find out what is your strength, what you want to become, and what is your interest. If you will select your course, if you select your subject according to your interest and according to your strength, you will get more success than you are supposed to get in other subjects and other fields. Second thing, how to recognize your ability. One very proven idea is that if something is coming to your mind that I should become a doctor, I should become an engineer, I should become an IAS officer, I should become an IPS officer, it means the Lord, the God
He has the Almighty. He has put all the qualities in you to become a doctor, to become an engineer, to become an IAS officer, to become an IPS officer. तो मैं हिंदी में थोड़ा बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आई शुड बिकम अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए, प्रोफेसर बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, इसका मतलब है कि ईश्वर ने, अल्लाह ने, उस परवरदिगार ने आपके अंदर वो खूबी पैदाइशी तौर पे डाल रखा है, इनबॉर्न क्वालिटी है कि आप बन सकते हैं। अगर नहीं बन सकते तो आपके दिल में वो बात कभी नहीं आती। आप याद रखिए, ताजमहल का ख्वाब शाहजहां को ही आया था, समझा रही बात? इसलिए आपके अंदर वो खूबी होगी। जैसे मैं आई वुड लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल। अगर किसी साइंटिस्ट ने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया, तो क्या एरोप्लेन में जो चीजें दरकार थी बनाने के लिए वो सारी चीजें दुनिया में मौजूद पहले से थी जब उसको ही पैदा किया था? मेरी बात समझिएगा आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, साइंस के भी स्टूडेंट मौजूद हैं पुराने। देखिए, अगर किसी साइंटिस्ट ने, आप जानते हैं नाम, उसने एरोप्लेन का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, तो क्या एरोप्लेन में लगने वाली सारी चीजें, यहाँ तक ईंधन तक, क्या वो साइंटिस्ट पैदा किया था या पहले से दुनिया में वो चीजें पहले से अल्लाह ने दे रखा है? ये साबित करता है कि अगर कोई चीज आपके जहन में आता है कि आपको करना है, इसका मतलब है, अच्छी चीजों की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि दोस्त थिंग्स, वो चीजें उसके लिए जो जरूरी है, दरकार है, वो पहले से है, आपको उसको डिस्कवर करना है। देखिए, डिस्कवरी इन्वेंशन में फर्क है, डिस्कवरी इन्वेंशन में फर्क है, खोज और आविष्कार में। डिस्कवरी क्या है कि जो चीज दुनिया में मौजूद है उसको तलाश करना, वो डिस्कवरी है। और किसी पहले से जो चीज है उसको, उसकी मदद से नई शक्ल देना, नया रूप देना, कोई नई चीज को फॉर्म करना, वो इन्वेंशन है। जैसे पेन का इन्वेंशन हुआ, लेकिन पेन में जो चीजें बनने के लिए थी वो चीज पहले दुनिया में मौजूद। अब भारत को किसी ने खोजा, अमेरिका किसी ने खोजा, वो दुनिया में था, किसी ने पैदा नहीं किया, ठीक है? तो ये मैं बोल रहा हूँ, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाटएवर your aim is, if your aim is, it means you can do। इसके लिए for it, आपकी गरीबी, your poverty, आपका बैकवर्डनेस, क्या बैकवर्ड जगह से है, गांव से है, देहात से है, छोटे शहर से है, गरीब परिवार से है, आपके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, ये मायने नहीं रखता। इफ यू वांट टू डू, यू कैन अचीव। उसके लिए जो चीजें हैं, आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको रास्ता मिलता जाएगा। उसका मिसाल अभी देखिए, सर्दी तो अभी थोड़ी देर खत्म हो रही है, सर्दी के दिनों में धुंध बहुत होता है। क्या धूप में हमको बहुत दूर कुछ दिखाई देता है? नहीं, लेकिन जब हमें सफर तय करना है तो हम क्या करते हैं? धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, द मोमेंट वी टेक स्टेप्स, जैसे हम कदम आगे बढ़ाते हैं, वे जो है वो द वे बिकम्स क्लियर, वो साफ होता जाता है। इसी तरह से अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, धूप है, तो आपको अपना कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाना, यू हैव टू टेक स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ाते चलना है, बिना सोचे हुए कि 100 मीटर आगे क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, 6 महीने के बाद क्या होगा। जस्ट लिव योर प्रेजेंट। आप अपने प्रेजेंट में, वर्तमान में, हाल का जो वक्त है, इसको अच्छे से गुजारिए। ये जो दिन मिला है 24 आवर्स, उसको, इस 24 आवर्स को अच्छे से गुजारिए। आप इस अपने दिन को बहुत अच्छे से गुजारिए। ये एक एक दिन महीना बनाता है, ये महीना साल बनाता है, और यही आपके करियर को अच्छा एक मकाम आपको देगा कि आप अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज, सपोज आपने पढ़कर एक मकाम हासिल किया, आप एक डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, तो आपके पास सोशल लाइफ में आपकी इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ आपकी जिम्मेदारी भी तो है कि आपने बहुत अच्छा किया। आप एक समाज से उठकर आए, एक गांव से उठकर आए, आप एक छोटे टाउन से उठकर आए, आपने बहुत बड़ा नाम कमाया, आपने बहुत बड़ा काम किया, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। तो क्या आपने सोचा कि मैं जिस समाज से आया हूँ, जिस गांव से आया हूँ, क्या उसके लिए भी मेरी कुछ जिम्मेदारी है कि मैं कोशिश करूं कि मेरे गांव से, फ्रॉम माय विलेज, फ्रॉम माय सोसाइटी, एनी डिजर्विंग स्टूडेंट हु वांट्स टू गेट हायर एजुकेशन, इफ ही इज लैकिंग मनी, इफ ही इज फाइनेंशियली पुअर, इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू जस्ट मेक अ ग्रुप ऑफ सम पीपल, मेक अ सोसाइटी, मेक अ क्लब एंड हेल्प देम गेन एजुकेशन। तो ये चीजें हमारी जिम्मेदारी है कि हम बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लेते हैं, बहुत बड़ा स्थान हासिल कर लेते हैं। तो क्या हमने कभी कोशिश किया कि हम ऐसे बच्चों को हम आगे बढ़ाएं? आप देखिए, मैट्रिक वाले बच्चे हैं, आप आगे पढ़ने के लिए जब भी आए, आपको कहीं भी दिक्कत हो, आप कांटेक्ट कीजिए पढ़ने के लिए, हम लोगों के पास आइए, हम या और भी जो यहाँ पे टीचर हैं उन लोगों के पास आपने जो सब्जेक्ट चुना है, अगर आपको फाइनेंशियली आप वीक हैं और कहीं दिक्कत होती है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं, आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी।
पैसे की वजह से आपको, या अगर आपको पता नहीं कि क्या करना चाहिए, आप कंफ्यूजन में है कि क्या करना चाहिए, आपको काउंसलिंग भी दी जाएगी। आप टीचर से सब कांटेक्ट कीजिए और आगे पढ़ाई कीजिए। पढ़ना बहुत जरूरी है। बगैर इल्म के जो इंसान है, आप समझिए अंधे की तरह है। A man without education, a man without knowledge like a blind। वो उसको पता नहीं कि अगला कदम कहाँ बढ़ाना है, उसको पता नहीं कि आगे क्या करना है। और इल्म हासिल करने के बाद, इल्म है वो रोशनी है। आपको इल्म अच्छे बुरे की तमीज देती है कि आप पढ़कर क्या कर सकते हैं और आप कहाँ जाते हैं। अब स्टूडेंट, आप पढ़ने लिखने के बाद, जॉब करने के बाद आपकी एक जिंदगी शुरू होती है, एक फैमिली लाइफ शुरू होती है। आपकी अपने देश के लिए भी जिम्मेदारी है कि आप देश के लिए आप कैसे सिटीजन बनते हैं, कैसे शहरी और कैसे नागरिक बनते हैं। पढ़ने के बाद आप अपने याद रखिए, हम चाहे जितना बड़ा मकाम हासिल कर लें, आज हमारे समाज में रिश्वत है, ये घून की तरह लगा हुआ है। आप जहाँ जाइए, आप सोचिए कि मैं बगैर रिश्वत के काम करूंगा, मैं अगर ऑफिसर बनता हूँ, जहाँ तक है, अगर आप समाज में कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, आप अगर वार्ड काउंसिलर, मुखिया, सरपंच, कुछ भी विधायक मंत्री बनते हैं, आप याद रखिए कि एक ये स्टूडेंट, ये बच्चे ही अगर शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा इंकलाब आएगा, आप बहुत बड़ा मूवमेंट लाएंगे, आप बदलाव ला सकते हैं। और ये स्टूडेंट आज एक एक लोग, आप एक परिवार बनाएंगे। और आप अगर चाहेंगे कि एक अच्छा परिवार बनाए, तो ये अच्छा परिवार एक बड़े लेवल पर जाके एक अच्छा जिला बनता है, अच्छा स्टेट बनता है और हमारा देश अच्छा बनेगा। ये करप्शन, भ्रष्टाचार, इन सारी चीजों से दूर होगा। तो आपकी लालच कितना चाहिए? पैसा, आदमी को पैसा चाहिए खाने के लिए, एक अच्छा घर हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए चाहिए। कि पैसे की लालच में आप पूरी जिंदगी, कुरान कहता है कि इंसान की लालच जो है ना, हिर्स है, वो कभी खत्म नहीं होगी, हत्ता कि वो कब्र में चला जाता है। अब देखिए, दुनिया का बड़ा से बड़ा अमीर जो दुनिया में एक नंबर पे होगा, वो भी कब्र में जाता है, वो भी मिट्टी के अंदर चला जाता है, वो कुछ लेकर नहीं जाता। इसलिए पैसे की जरूरत उतनी ही है जो हमारी दुनियावी जरूरत के लिए हो। और हमारा पैसा, हमारी दौलत, हमारा स्टेटस, हमारा पद अगर किसी दूसरे के आसानी के काम नहीं आया, किसी आसानी में, तो हमें और शैतान में कोई फर्क नहीं है। आपका पैसा सिर्फ आप तक सीमित है, तो फिर आप समझ लें कि आपकी जिंदगी बेमकसद है। अब मेरा एक और पॉइंट था, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, बस खत्म करता हूँ। इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंग्लिश? देखिए, बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ी बेतवज्जोही है, पिछले 20-25 सालों से, उससे भी ज्यादा से 10th क्लास में इंग्लिश कंपल्सरी नहीं है। इस बात को सब जानते हैं, सारे टीचर्स जानते हैं। वो कॉलेज लेवल में पढ़ाने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, ये स्कूल लेवल पे पढ़ाते हैं या नीचे लेवल पढ़ाते हैं, कि आप पढ़ते हैं तो बगैर इंग्लिश के आप फायदा होने नहीं जा रहा है। आप क्या बनना चाहते हैं? आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, टीचर, कुछ भी बनना चाहते हैं आप, भले हमारी हिंदी मातृभाषा है, लेकिन यकीन जानिए अच्छी किताबें हिंदी में नहीं है। उर्दू है ना, हिंदुस्तानी भाषा, अच्छी किताबें उर्दू में नहीं, बहुत कम किताबें हैं, आपको किताब नहीं मिलेगी। आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा करें, आप चाहते हैं कोर्स के अलावा भी एक्स्ट्रा किताबें पढ़ें, तो आपको एक्स्ट्रा किताबें जो आपको वर्ल्ड लेवल की है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करती हैं, वो किताबें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेगी। आप कहीं पढ़िए, इट डजंट मैटर आप कहाँ पढ़ने जाएंगे, कहीं भी पढ़िए, लेकिन इंग्लिश जरूर पढ़िए, इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश सीख लेके मैट्रिक तक कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आपको 10th के बाद कोई भी सब आप पढ़ने जाएंगे सब्जेक्ट, आपको बहुत टेक्नोलॉजी है जिसमें इंग्लिश है, इंग्लिश सीखने से आपका वक्त बच जाएगा, आप टेक्नोलॉजी को समझ जाएंगे। बहुत सारे एक वर्ड है कि जिसके मीनिंग को समझ जाने से आप बायो का टर्म समझ जाएंगे, फिजिक्स का समझ जाएंगे, केमिस्ट्री का समझ जाएंगे। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि इंग्लिश भी सीखिए। आप फेयरवेल का मौका है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बोलना बाकी है, मेरी बातें यहाँ खत्म हुई हैं। जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और आपने बहुत अच्छा किया। पिछले साल भी हम लोगों ने यहाँ पर आकर आपको मोटिवेट किया था, आपका रिजल्ट वाकई बहुत अच्छा आया था। आपके सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उन्होंने पिछले कई सालों से, ये ज़बानी बातें नहीं, आप देखिए फोटो सब, ये इनका रिजल्ट बताता है कि बहुत अच्छा है। और दूसरी बात कि मैं प्राउड फील इसलिए करता हूँ, मुझे फख्र है कि मैं इनका टीचर रहा हूँ। ये अर्श कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट रह चुके हैं, कायदे सर हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं, उनके सर मौजूद है, मुदस्सर भी, तो ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन बहुत जगह बोलने का मौका मिलता है, लेकिन जहाँ पे अपना प्रोग्राम है, हमारे स्टूडेंट का प्रोग्राम है, इन्होंने इतना बड़ा, समझिए बहुत बड़ा एक सेंटर है कि जहाँ से इतने बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, ये बच्चे आगे कुछ करते हैं तो फिर एक चेन बनता जाता है एक कामयाबी का। इसलिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। आए हुए मेहमानों का मैं शुक्रिया करता हूँ अपने स्टूडेंट की तरफ से। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।